नमस्ते। आप जुड़ चुके हैं न्यूज वाले के साथ और मैं हूं आपके साथ संजय सिंह। देश में किस राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं सबसे अच्छी हैं? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप शायद दिल्ली का नाम सबसे पहले लें, क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है। और दूसरी बात ये कि केजरीवाल सरकार के दावों को सुनने के बाद भी दिल्ली से बाहर रहने वाले लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बन चुका होगा कि दिल्ली में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज्यादा अच्छी हैं, क्योंकि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में केजरीवाल ने उन्हीं दावों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन आज हम दिल्ली के ही सरकारी अस्पतालों का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, जहां कोरोना की वजह से मौतें हुई हैं। लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देखिए जिसमें दिल्ली सरकार के दावे और जमीनी हालात के बीच का अंतर आपको साफ नजर आ जाएगा। एक कोरोना पेशेंट बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी के साथ स्कूटी पर रात को 2 बजे सड़कों पर भटकता है, क्योंकि उसे एक बेड मयस्सर तक नहीं होता। वीडियो देखिए, छोटा सा वीडियो है। उसके बाद हम कुछ आंकड़े बताएंगे और बताएंगे कि दिल्ली सरकार कोविड से जमीनी कैसे निपट रही है और अखबारों और टीवी पर कैसे निपट रही है। वीडियो देखिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह जी। मैं अपने फादर इन लॉ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ, ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਆਰਐਮਐਲ ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪੀਟਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਬੈੱਡ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਅਪਰੋਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈੱਡਸ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਾਈਫਾਈਡ, ਸ਼ੂਗਰ ਔਰ ਬੀਪੀ ਦਾ ਆਲਰੇਡੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਇੱਕ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਟਾਈਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਰੂਮ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰੂਮ, ਫਿਰ ਕਿਚਨ, ਫਿਰ ਬਾਥਰੂਮ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਇੰਨੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਜ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨਾਇਕ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹੇ ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਤੇ 4-4 ਮਰੀਜ਼ ਨੇ। ਉਹ ਆਪ ਇੰਨੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਢਿੱਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰ ਮੰਨ ਸਕਦਾ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਰਾਤ ਦੇ 1:49 ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1-2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਬਣ ਕੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज फिर मीडिया के सामने आए थे। इस वीडियो की बात आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। अस्पतालों में बेड को लेकर बहुत सवाल उठे। उसके बाद आज सीएम ने कहा कि वो दिल्ली कोरोना नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें बेड की जानकारी ऑनलाइन मिल जाएगी। मरीज जहां जाना चाहे उस अस्पताल में जाकर बेड ले सकता है, और अगर बेड नहीं दिया जाता तो वो 1031 पर फोन करे, स्वास्थ्य विभाग सीधे उस तक बेड पहुंचाएगा। लेकिन अब आते हैं वीडियो पर। इस वीडियो में दिल्ली की सड़क पर आधी रात को एक व्यक्ति एक वीडियो शूट करता है, जिसमें उसके ससुर और उसकी पत्नी स्कूटी पर जा रहे होते हैं। स्कूटी पर 2 लोग बैठे हैं। जो पीछे व्यक्ति आपको नजर आ रहा है
वो इस व्यक्ति के मुताबिक कोविड का पेशेंट है, बुजुर्ग है, उसे कई बीमारियां हैं और उसकी बेटी स्कूटी चला रही है जो इस शख्स की पत्नी है। इनका कहना है कि दिल्ली के अस्पतालों में इन्हें बेड मुहैया नहीं कराया गया, जिसके बाद ये भटकते रहे, रात भर अस्पतालों के चक्कर लगाते रहे। इसके बुजुर्ग पिता ने कहा कि वो घर पर मर जाएंगे लेकिन अस्पताल में मरना मंजूर नहीं करेंगे। और ये शख्स वीडियो में ये भी कहता है कि दिल्ली सरकार के जो अस्पताल हैं वहां पर हालत बहुत ज्यादा ठीक नहीं, क्योंकि एक एक बेड पर कई मरीज पड़े हैं और अस्पताल में मरीजों की भीड़ लगी है। कभी ये शख्स आरएमएल अस्पताल जाता है, कभी लोकनायक अस्पताल जाता है, बेड नहीं है, अप्रोच नहीं है और जो पेशेंट है वो काफी गंभीर बीमारियों से पीड़ित है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर वो कोविड का पेशेंट था तो अस्पताल ने उसे एम्बुलेंस मुहैया क्यों नहीं कराई ताकि वो घर तक पहुंच सके। उसकी बेटी ने खुद की जान खतरे में डाली, उसे लेकर घर पहुंची और ना जाने अब उस परिवार के साथ क्या होगा। आज जब केजरीवाल आए तो उन्होंने कहा है कि दिल्ली में 6,731 बेड हैं कोविड पेशेंट्स के लिए, जिनमें से 2600 बेड उस पर मरीज भर्ती हैं और बाकी के जो 4100 बेड है वो अभी भी खाली है। मतलब बेड की कोई कमी नहीं है, केजरीवाल पहले दिन से कहते चले आ रहे हैं। दिल्ली में 20,000 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज हो चुके हैं और हालात चिंताजनक भी बन चुके हैं। एक वीडियो हमने आपको पहले दिखाया था जिस पर कई लोगों ने सवाल भी उठाया, जिसे फेक बताया गया। हम यहाँ पर स्पष्ट करना चाहते हैं, हमने उस ऑडियो की पुष्टि नहीं की थी। यह ऑडियो कहां से आया इसकी पड़ताल की जा रही है, लेकिन उस ऑडियो में बताया गया था कि अस्पतालों में मरीज मर रहे हैं। कुछ दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले, दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सरकारी अस्पतालों और केंद्र के सरकारी अस्पतालों जो कि दिल्ली में मौजूद हैं उनसे कारण बताओ नोटिस देकर कुछ जवाब तलब किए हैं। दरअसल आंकड़े बताते हैं कि 10 मई तक दिल्ली में कोरोना से सिर्फ 53 लोगों की जान गई। आरोप शुरू से लगता आ रहा है कि दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली के अस्पताल मरीजों की मौत के आंकड़े छिपा रहे थे। 10 मई तक की अगर आप गिनती करेंगे तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई 4 महीना कोरोना का जो मौसम चला उसमें सिर्फ 53 मौतें हुई दिल्ली के अंदर। केजरीवाल सरकार इसको गिनाकर अपनी वाहवाही लूट रही थी, लेकिन 10 मई के बाद आज 2 जून है। इतने दिनों में 10 मई से अगर आप 22 जून जोड़ेंगे तो करीब करीब 22-23 दिन होते हैं और इतने दिनों में 450 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत दिल्ली के अस्पतालों में हो चुकी है। सरकार को भी कहीं ना कहीं यह अंदेशा है कि अस्पतालों की तरफ से मौत की रिपोर्ट बाद में बताई गई और इसी के चलते चाहे वो दिल्ली का गुरु तेग बहादुर अस्पताल हो, बाबा भीमराव अंबेडकर अस्पताल हो या फिर जो दिल्ली का एक तीसरा सरकारी अस्पताल है जो दिल्ली सरकार के अंडर में आता है, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, और इसके अलावा दिल्ली का सबसे बड़ा लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल, LNJP हॉस्पिटल, उससे भी कारण बताओ नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। इसके अलावा केंद्र के अंडर में जो अस्पताल आते हैं, जैसे आप बात कर ली जाए एम्स की, सफदरजंग की, इसके अलावा केंद्र के अंडर में एक और अस्पताल आता है जिसका नाम है राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ये तीनों दिल्ली के अस्पताल हैं जो केंद्र के अंडर में आते हैं और इनसे भी जवाब तलब किया गया है। कई तरीके के कयास अपने आप लोग लगा रहे हैं कि क्या दिल्ली में मौत के आंकड़े छुपाए गए, जिसका अंदेशा शायद अब सरकार को भी हो गया है क्योंकि बातें बाहर आ रही हैं। और इसी के चलते एक ऑडियो वायरल हुआ था जिसमें कई लोगों ने सवाल पूछे, कुछ लोगों ने इसे फेक भी बताया। न्यूज वालों ने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाला था जिसमें बताया गया था कि गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने यह दावा किया था कि 3 दिन में 4 मरीजों की मौत हो गई, जिनका जिक्र हेल्थ बुलेटिन में नहीं किया गया। वो मरीज कोरोना में मरे थे, वो मरीज कोरोना से मरे थे। हमने ये नहीं कहा था कि जिन लोगों की जान गई उनका पोस्टमार्टम किया गया। हमने सिर्फ ये कहा था कि जिन लोगों की मौत हुई उनके बारे में पोस्टमार्टम विभाग के डॉक्टर, जिनका नाम विवेक चौधरी है, उन्होंने ये दावा किया था। आप चाहे तो इसे गूगल पर देख सकते हैं, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर हम कुछ जानकारी दे रहे हैं तो उसकी कोई ना कोई जमीनी हकीकत है। इसी आधार पर हम वीडियो सामने रख रहे हैं। आज के वीडियो में इतना ही।
लेकिन आप अगर फेसबुक पर हमारा ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर हमारा वीडियो देखना चाहते हैं और भी वीडियो आप पहुंचना चाहते हैं उन तक, तो हमारे यूट्यूब पेज पर जाइए, हमारे यूट्यूब पेज न्यूज वाले को सब्सक्राइब करिए। ऐसी और भी खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। ऐसे वीडियो और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल न्यूज वाले को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां मिलेगी आपको सटीक जानकारी, सही जानकारी और देश की दिशा बदलने वाली खबरों की पड़ताल के साथ पूरी खबर।